Good morning everyone. I hope you all are fit and fine. So children, today we are going to start with your lesson number 2, that is a poem, The Road Not Taken, and it is written by Robert Frost. So in this poem what he simply wants to say that about the choices that shape us, and it is all about the chances or the choices that we doesn't took in the past and we are regretting for it, or we are उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमने पास्ट में वो चॉइस ना ली, अगर ले लेते तो शायद वो हमारे लिए फ्रूटफुल होती. सो आई विल बिगिन विद द रीडिंग ऑफ द स्टैंजा. आई विल एक्सप्लेन यू स्टैंजा वाइज, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो and do like it. Goodbye. Okay, here is the poem, The Road Not Taken, and the road symbolizes here our life. That is, the poet says that the path we do not choose in our life is the road not taken, and he describes his feeling about that choice that he had left in the past. वो उस choice के बारे में वो feeling किस बाप के सामने रखेगा जो उसने past में अपनी choices छोड़ दी हैं. And the path which we have chosen decides our future, our destination. और जो हम path choose करते हैं अपनी life में वो ही हमारा future और हमारी destination को show करता है. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it, but it cannot be go back on it. तो पोइट हमें यहाँ ये भी बता रहा है कि हम जो अपनी चॉइसेस जो हम चूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे हमारी लाइफ पे पड़ता है और हमारे फ्यूचर पे पड़ता है, और अगर हम कभी गलत चॉइस करते हैं यानी गलत रोड को चूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता. हम बैक पास में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते. सो वन मस्ट बी वेरी वाइज वाइल चूजिंग वाइल मेकिंग चॉइसेस. One must be very wise while choosing, while making choices. So I'll start with the reading of this first paragraph. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So beta just mark the difficult words over here. Diverge means separated. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोज्ड लीव्स, जहाँ पर पीली पीली सूखी सूखी पत्तियाँ गिरती हैं. एंड हेयर अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Okay, so once the poet was walking down a road, and there he saw a diversion, and there were two different paths, and he has to choose one out of them. So एक बार क्या होता है, जो पोएट होता है वो एक रोड पे जा रहा होता है और वहाँ पर उसे दो डाइवर्जन्स दिखते हैं, यानी दो रोड्स डिवाइडेड दिखते हैं, और वो सोचता है कि उसे इन दोनों में से कौन सा रोड चूज़ करना है ट्रैवल करने के लिए. The poet says that he was one person, he could travel one road, but he could travel one road, and he has to choose which one out of these two roads. And yellowwood means a forest with leaves which are wearing out, and they had turned yellow in color, and the season, it means the season of autumn here. तो वो ये बोलता है कि एक तरफ जो था वो पत्तियाँ थी, सूखी सूखी पत्तियाँ थी वहाँ पर येलो कलर की एक रोड पे, और दूसरा जो रोड था वो बिल्कुल खाली था. इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल, वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. एंड ये जो पेड़ था, ये जो येलो वुड था इनका, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ पर लोग रहते हुए आ रहे हैं. And they represent the people who are older. And then the poet kept standing and then looked at the path very carefully as he could see it. Before taking the path, he wanted to know how it was suitable for him or not. He was able to see the path till from where it curved, from which it was curved with the trees and was hidden. And it happens in our life also. दैन जब हमें लाइफ में कोई चॉइसेस करनी होती हैं तो हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हमेशा होते हैं, एंड वी हैव टू चूज़ वन आउट ऑफ दैम. ये हमेशा सबके साथ ही होता है कि जब भी लाइफ में आपके साथ ऐसी कन्फ्यूजन आ जाता है तो आपको भी कोई दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है. और ये हमें बताता है हमारे प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है रास्ता और कौन सा नहीं है. और उस टाइम पे जो हम डिसीजन लेते हैं वही डिसाइड करता है कि हमें किस पाथ पे चलना चाहिए, हम किस पाथ पे चलेंगे, जो हमारा डिसीजन सही है या नहीं इसका पता हमें वो एंड तक पर पहुंचने पे ही पता चलता है. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद योर सेकंड स्टैंजा रीडिंग. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing day had warned them really about the same. So just underline the difficult words over here. Fair means as good as the other one, and second is claim, that means better option.
The here grassy means unused and wanted where means had not been used. So the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that both the paths were equally good. और उसको ये लगता है कि दोनों ही paths जो हैं वो equally good हैं, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि उसे किस पे चलना है, कौन सा उसके लिए सही है, कौन सा पाथ उसके लिए सही है. ही सेज जस्ट एज फेयर सो ही फेल्ट दैट बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम. और फिर उसको ये लगता है कि मैं उसके हिसाब से दोनों ही पाथ जो हैं वो सही हैं और वो उनमें से एक पाथ पर चलना शुरू कर देता है. ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेज इट एज इट हैज़ ग्रास ऑन इट एंड इट मीन्स इट वॉज अनयूज्ड. और जिस पे ग्रास थे वो उस पर चलना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि ये पाथ किसी ने यूज़ नहीं करा है, तो वो उसको चूज़ करता है जिसको किसी ने यूज़ ना करा हो. Not many people had walked on this path earlier, that is why this path is grassy, and wanted where here means that if it was not walked over by many people, after he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. और थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि दोनों ही एक जैसे हैं. Both the paths were similar and worn out. Even in our life also, if we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must have to face them. और इसी तरह से हमारी लाइफ में हमें दोनों ही पाथ आपको डिफ़िकल्ट दिखेंगे, पर आप जब दोनों में से दोनों को ही देखोगे ध्यान से तो समझ में ये आ जाएगा कि हर जगह आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगी, और इन सबको हमें फेस करना ही पड़ता है. सो वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट दैट वे. और हमें ये लगता है कि हमने जो चूज़ करा है वो ज़्यादा बेटर था पहले वाले से, पर ये चीज़ गलत है. दोनों ही इक्वल रहते हैं, तो जो भी आप चूज़ करते हो मेहनत आपको दोनों जगह ही करना पड़ेगी. ओके, नाउ द थर्ड स्टैंजा. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Here सिर्फ एक ही वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, that is trodden back. Here trodden means walked over. Okay, walked over. So the poet says that both the paths were similar that morning. उसको दोनों ही पाथ सिमिलर लगते हैं उस सुबह. And both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. दोनों के ऊपर ही पत्तियाँ बिखरी हुई थी, बहुत सारी ग्रास हो रही थी और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि इन रास्तों पर कभी कोई भी नहीं चला है. And he decided that the day he would take one path and keep the other path for another day. और फिर वो ये सोचता है कि पहले दिन मैं एक रोड को चूज़ कर लेता हूँ और दूसरे दिन मैं दूसरे रोड को चूज़ करूँगा. ऑल्दो उसे ये पता होता है कि दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे. एंड ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड. और उसे ये भी पता है कि एक बार वो जो चूज़ कर लेगा उस रास्ते पे फिर वो कभी भी वापस नहीं चल पाएगा दूसरे रास्ते पे. सिमिलरली इन आवर लाइफ, वंस वी चूज़ एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन दैट वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक. तो जैसे ही हमें हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा ऑप्शन हम चूज़ करते हैं तो हमें उसी ऑप्शन को लेते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होता है. हमारे पास वापस आने का या वापस उस जगह को वापस उस किसी और चीज़ को चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है. सो वॉट एवर यू आर चूजिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पाथ, यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ, यू हैव टू मूव अहेड विद दैट ऑप्शन ओनली, बिकॉज वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट अर्लियर. और हमें दोबारा से दूसरा कोई ऑप्शन को चूज़ करने का भी टाइम नहीं मिलता है. नाउ द लास्ट स्टैंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Here sigh means deep breath, and hence here means future. Okay, it means future. So what he is saying that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, but he traveled on the road that which has been traveled lesser number of people by lesser number of people. और उसको इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा क्योंकि उसका ये जो डिसीजन उसने चूज़ करा था इस रोड को चूज़ करने का, वो उसने खुद से लिया था. और उसने क्या देखा था कि यहाँ पर बहुत कम लोग गए हैं इस रोड से, यही सोच के कि मे बी ये डिफ़िकल्ट होगा, तो उसने डिफ़िकल्टी चूज़
करा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी द चॉइसेस दैट यू मेड, व्हाट यू मेड, यू हैव टू बी हैबिचुअल टू इट, और यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज. Okay, and this is a very strong message for all the students that you should be wise and be very careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choices that you make today. तो आपका फ्यूचर भी वही डिसाइड होगा, वही होता है जो आप आज जो चॉइसेस लेते हो, आज जो आप ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, चॉइसेस रहते हैं, जो आज आप चूज़ करोगे वही आपको इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी. और अगर हम कोई डिसीजन इस टाइम गलत लेते हैं तो हमारे लिए हमें रिग्रेट रह जाता है उस चीज़ का. और अगर अभी हम सोच समझ एक सही डिसीजन ले लेंगे तो हम आगे हमारी जर्नी जो रहेगी वो बहुत इजी रहेगी, बहुत ही सेफ़ रहेगी और बहुत कंफर्टेबल रहेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आई होप आपको ये समरी इसकी समझ में आ गई हो. फॉर एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी और कॉल मी बिफोर 7 PM टुडे. टिल द टाइम टेक अ लॉट ऑफ केयर. गुड बाय.